فرصت کے لمحات گئے نعمت خدا کی جان لو، کر لو علم نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: بے شک اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بس قیامت تک جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو مدنی چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوچئے، آپ ایک ایسے لمحے میں موجود ہیں جس وقت زندگی کی بھاگ دوڑ رک جاتی ہے، آس پاس کی دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور آپ کے ذہن میں مختلف سوچوں کی ایک لہر آتی ہے۔ کبھی تو یہ آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے اور کبھی یہ سوال کرتی ہے کہ کیا میں نے کبھی اپنی زندگی کا استعمال صحیح کیا؟ جی ہاں، یہی سوچیں ہمیں بعض اوقات آگے بڑھنے کا راستہ بتاتی ہیں اور کبھی کبھی ہمیں یہ مایوس کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس لمحے یا ان لمحات میں ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچنا چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے، کیسا سوچنا چاہیے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا آپ کا یہ ذہن خوشیوں کی یاد دلاتا ہے یا گزرے ہوئے لمحات کی حسرتیں لے آتا ہے؟ آج کے پروگرام فرصت کے لمحات، جس میں سوچیں ہوتی ہیں بے شمار، اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ سوالات ہوں گے ہمارے اور جوابات آپ کے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فرصت کے لمحات میں سوچوں کی برباد۔ اس میں سوالات ہوں گے ہمارے اور جوابات آپ کے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ان سوچوں کا بندے کی صحت پہ بھی کوئی اس کا اثر پڑتا ہے؟ صحت پہ بالکل اثر پڑتا ہے اس کا، لہٰذا سی بات ہے فرصت کے لمحات میں جب وہ سوچتا ہے تو اس کی ذہنی دباؤ، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر فارغ لمحات میں بہت سی جو ہے سوچیں اس کے ذہنوں میں آتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے وہ بری ہوں۔ یہ اس کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اچھی سوچ کی طرف جاتا ہے، بری سوچ کی طرف جاتا ہے۔ بری سوچ جو ہے وہ زیادہ دباؤ پیش کرتی ہے۔ اچھے لمحات میں نماز کے لیے جائیں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرصت کے لمحات میں ایک اچھا لمحہ ہوگا۔ لوگوں کے اندر غلط سوچ زیادہ ہے، اچھی سوچ ہے، اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں والدین سے گزارش کروں گا کہ والدین نے بچوں کو اچھی پرورش دیں، نماز کے لیے، تعلیم کے لیے، اور فراغت میں ان کو اچھی سوچ پیدا کریں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو سوچیں معاشی بھی ہوتی ہیں، سوچیں سماجی بھی ہوتی ہیں۔ بس اوقات عام کا بندہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ایسا نہ کریں، اچھا سوچے اور اچھی ترغیب دے لوگوں کو۔ اگر غلط سوچ کی طرف جائے گا تو غلط اثرات ہوں گے۔ اچھے ماحول میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں میں بیٹھے گا، اچھی سوچ اچھی پیدا کرے گا تو اس پہ اثرات جو ہیں اچھی ہی پیدا ہوں گے۔ فیملی ممبرز جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں الحمدللہ ایک صاحب حیثیت ہوں اور میرا روزگار بھی اچھا ہے، معاشی حالات بھی بہتر ہیں، تو وہ سوچ بنتی نہیں ہے کہ میرے فیملی ممبرز میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا سا معاشی حالات جن کے درست نہیں ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر یا سوچ ان کے بارے میں بنتی نہیں ہے کہ میں ان کی سپورٹ کیسے کروں۔ بالکل بننی چاہیے، اور حالات آپ کو پتہ ہے، جس طرح کے ماحول اور حالات ہیں جس طرح کے، اس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی مدد کرنا یہ آپ کے لیے ایک بہتر عمل ہوگا۔ اچھا، مثال کے طور پہ میں نے کال کر دی آپ کو اور آپ نے اٹینڈ نہیں کی، میں آپ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی جی باتیں بالکل، یہ دیکھیں، یہ تو اب ایک اس کی اپنی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ منفی اثرات سوچیں گے آپ کہ یار پتہ نہیں کیوں نہیں فون اٹھایا، یہ غلط سوچ میں اس کے دلوں میں جائے گا، غلط سوچ جائے گی۔ اب جیسے وہ بدگمانی پیدا ہوگی، جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کسی
मसरूफियात की बिना पे नहीं उठाया आपका फ़ोन। तो अच्छी सोच रखनी चाहिए इंसान के लिए, जो कि आपके लिए भी बेहतर मैं समझता हूँ कि असरात पैदा करेगी। आप क्या कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सोचें जो हैं वो मनफी भी होती हैं और मुस्बत भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। क्या इसका इंसान की सेहत के ऊपर और जहन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आदमी बीमार होता चला जाता है अगर परेशानी है। जो पुराना दौर होता है वो याद आता है, माँ बाप के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है, बहन भाइयों के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है, बचपन के लोग जो स्कूल के लाइफ, कॉलेज की लाइफ याद आती है। सोच से मुतल्लिक हमारा यह है कि जब बंदा फारिग होता है तो सोचें ज़्यादा आती हैं। इस दौरान हम अपनी सोच को मुस्बत कैसे बनाएं? मुस्बत इसी तरह से बना सकते हैं कि भाई दीन को भी लेके चले, सिर्फ दुनियादारी में ना पड़े रहे। दीन, हम लोगों ने दीन को छोड़ा हुआ है ना, इस वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि बंदा अपने बारे में सोचता है कि मेरी सब लोग रिस्पेक्ट करें, तो उसको क्या करना चाहिए? तो ज़ाहिर है दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो अपनी रिस्पेक्ट होगी ना। अगर मैं आपको आप बोलूँगा तो जब भी तो आप मुझे आप बोलेंगे, अगर मैं आपको तू बोलूँगा तो आप मुझे आपकी थोड़ी बोलेंगे, फिर आप भी मुझे तू बोल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, हाँ, माशरा जैसे होता है ना, वो एक बॉल की तरह होता है। बॉल आप दीवार से मारेंगे ना, जितनी ताकत से उतनी ही ताकत से रिटर्न वापस आ जाएगी। तो ये है माशरा इस तरफ जाता है। और जब आप नाउमीदी और मायूसी की बात करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन्स बनते हैं जो नाउमीदी के होते हैं। और अगर आप होप रखेंगे ना, अच्छी उम्मीद रखेंगे, तो वही हार्मोन जो है ना वो आपको होप बॉडी में बेहतरी की तरफ ले जाए। हाँ, होपफुल कर नहीं क्रिएट करते हैं, हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, अच्छे का हार्मोन बन जाते हैं बॉडी के अंदर और आदमी सेहतमंद हो जाता है। अच्छा कभी ऐसे भी होता है कि फरागत के जो लम्हात होते हैं, फुर्सत के जो लम्हात होते हैं, उनमें सोचें आती हैं गलत सोचें भी आती हैं। भाई। दीन को पकड़ लें। सब शैतानी वसवसे, पुराने बुरे से बुरे नेगेटिव जो माहौल है वो निकल जाएगा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन को कि अपनी सोच को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव रखें? मैं मदनी चैनल के तमाम नाज़रीन से यही कहूँगा कि भाई आप भी पॉजिटिव में रहें। आपको चाहे माशरा कुछ भी बोले, लेकिन आप पॉजिटिव रहें। मेरे नबी के उसवा हसना को फॉलो करें और इंशाल्लाह आप पॉजिटिव में रहेंगे। आप एक वक्त ज़रूर आएगा, आपकी जीत ज़रूर होगी। वो एक आदमी 10 थप्पड़ मारेगा, 11वां नहीं मारेगा, बोलेगा नहीं यार ये तो रिप्लाई नहीं करता, शरीफ आदमी है, चलो छोड़ो उसको। जब बंदा फारिग होता है तो तरह तरह की सोचें उसको घेर लेती हैं। कभी तो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कभी ये इसकी सेहत के ऊपर और जहन के ऊपर ये सोचें असरअंदाज होती हैं। जब फारिग के फुर्सत के लम्हात होते हैं तो हमें ये चाहिए दुरूद शरीफ पढ़ें। सोचे तो वो देखें आपको नमाज के दौरान भी आती हैं, लेकिन हमें ये चाहिए जब अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, जितनी भी परेशानी है इंशाल्लाह सब आपकी दूर हो जाएंगी। इंसान को अपनी सोच रखनी कैसी चाहिए? सोच आदमी, जब तक हम अपनी सोच सही रखेंगे इंशाल्लाह नीयत साफ़ होगी, मंजिल आसान होगी इंशाल्लाह। मेरा तो ये यकीन है। नमाज की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इसी की बरकत होगी। ऐसे हमें रोज़ी मिली, रिज़्क मिल रहा है। तरह तरह की सोचों में जब बंदा गिर जाता है तो उसको इन सोचों से कैसे निकलना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, अगर अपनी सोचों को आप मजबूत रखें, मनफी ना रखें। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला की याद, नमाज कि गाफिल ना हो। गाफिल ना हो, कुरान शरीफ पढ़ें, जो लोग आपको नज़र आए उनकी मदद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इस पूरी ज़िंदगी में जब कभी फुर्सत के लम्हात मिलते हैं, कोई चंद लम्हात मिलते हैं, बंदा फारिग होता है तो तरह तरह की सोचें आकर बंदे को घेर लेती हैं। वो किस टाइप की सोचें होती हैं, आप जरा बता सकते हैं? बस सोचे तो हज़रत साहब ऐसी होती हैं कि भाई मदीने में दिन गुजारें, रात मदीने में गुजारें। हमें अपनी सोच को कैसा रखना चाहिए? हमें अपनी सोच को अच्छी रखना चाहिए हज़रत साहब। समझ लें सोच ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के काम आए ज़िंदगी ना, और अच्छी सोच हो, किसी का भलाई कामों में मदद हो, अच्छी मदद हो किसी की। ये भी होता है ना कि जो बंदा अपने बारे में सोचता है वो दूसरे के बारे में भी सोचे ना। हाँ बिल्कुल, सोचना मैं सोचता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट हो। सोचना चाहिए आदमी को, जैसे अपने बारे में सोचता है ऐसे दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए आदमी को। कि अगर मैं चाहता हूँ मेरी लोग इज्जत करें तो वो उसको भी चाहिए दूसरों की। तो इस तरह की सोच होनी चाहिए। आदमी की सोच ऐसी होनी चाहिए कि दीन के माहौल में ना काम होना चाहिए और सारे काम अल्लाह की रजा के लिए होने चाहिए। जब बंदा फारिग होता है, तन्हा होता है, तो वो सोचों की दुनिया में गुम हो जाता है। बेशक हो जाता है। ये सोचें इंसान की जहन को और सेहत को मुतासर करती हैं। हाँ, करती भी है और नहीं भी करती। अच्छाई की तरफ सोचोगे तो नहीं कर रही, बुराई की तरफ सोचोगे तो कर रही है उसको।
गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचकर बंदे को अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए? वो ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी बनस्बत जो दौर गुजर रहा है ना, जो गुजर चुका अल्लाह ताला का एहसान है, बड़ा अच्छा गुजर चुका है। मदनी चैनल के नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी सोच को कैसा रखें? बस सोच को तो पॉजिटिव रखें, अल्लाह ताला से मामलात को जोड़ के रखें। जब बंदा रात को बिस्तर पे लेटता है तो तरह तरह की उसको सोचें जो है आनी शुरू हो जाती है। इन सोचों का हमारी सेहत पे कोई असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि रात को अगर हम लोग लेट सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे नहीं, मस्जिद में नहीं जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो कई मुसीबतों में पड़े रहेंगे, क्योंकि दीन से जैसे जैसे दूरी हो रही जा रही है, इंसान उसे से परेशान होता जा रहा है। तो ये हमारी सोच कैसे बने कि हम जल्दी सोने वाले बंदे अल्लाह की याद में लग जाएं, रब को याद करने लग जाएं? वो ये तो देखो सोच जी, कैसे हर बनेगी? सोच है ना कि कम से कम कोई जैसे दीन की तरफ लोग जाते हैं वो आस्ता आस्ता सुधर जाते हैं, वो सोना भी शुरू जल्दी करे, फिर आस्ता आस्ता सिस्टम चलता रहता। जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा, जब तक तो फिर ये निज़ाम ऐसे खराब ही रहेगा। सुबह उठे, नमाज पढ़े, रात को टाइम से सोए, सुबह टाइम से उठे, रोजी की तलाश में जाए, कुरान पाक पढ़े, तौबा करे, जिससे इंसान के हालात बेहतर दर बेहतर होते जाएंगे। ऐसी सोच बनती बहुत मुश्किल है, क्या करें? बस वो बनानी पड़ती है। अब हर बंदे को घर में माँ बाप है, वो अपनी औलाद को थोड़ा ब्रीफिंग देता रहे तो आस्ता आस्ता उनका ज़हन चेंज करे, कुछ दीन की तरफ जब चलते रहे तो फिर वो आस्ता आस्ता चेंज हो सकते हैं, जैसे कई लोग हो भी जाते हैं। अच्छा, कभी देखा होगा कि ज्यादा सोचने से बंदा और परेशान होता है, ऐसा भी होता है? वो तो परेशान होना है, जब रात को सोना लेट तो फिर आँख ही नहीं खुलनी, तो परेशानी होना कि यार मेरा ये भी काम रह गया, ये भी काम रह गया, ये भी काम रह गया, तो ये फिर सिस्टम तो खराब है ना। बाद दफा सोचे इतनी ऊपर अपने हावी कर देता है, ज़हनी तौर पे टेंशन में आ जाता और है। नफसियाती हो जाता है ना, फिर वो जब बंदा नफसियाती है तो वो कुछ भी कर सकता है। इन सोचों को पॉजिटिव रखने के लिए, मुस्बत रखने के लिए हमें क्या करना इनको चाहिए? यही है कि भाई अपने टाइम से अपने खाओ पियो, टाइम से सो, टाइम से उठो, सुबह टाइम से अपनी रोजी की तलाश में जाओ, दीन की तरफ अपना ज़हन करो, अच्छी सोबत में बैठो, अच्छे लोगों में बैठो, दीनदार लोगों में बैठो, दुनिया को रखो, दीन को भी रखो, फिर तो बंदे का ज़हन एक चलता रहता है ना। अगर वही कि रात को सो गए, सुबह उठे नहीं, चलो वही काम तो वही रहेगा, फिर बंदा नफसियाती हो जाएगा आस्ता आस्ता। जो कुछ भी होना होता है अल्लाह पाक की रजा के ऊपर बंदे को राजी रहना चाहिए और खुद कोशिश करता रहे। कोशिश करते रहना चाहिए। फरागत में सोचे उसको जरूर आती है। इन सोचों को बंदे की सेहत पे क्या असर पड़ता है? ज़हनी तौर पे तो इंसान को ज़ाहिर बात है कि उसके मनफी असरात ही होते हैं। सबसे पहले तो बड़ी बात ये कि उसकी सेहत के लिए, फिर जो मनफी असरात जो अडॉप्ट करता है वो या जो देखता है उस पर यह है कि आपकी फैमिली पे भी थोड़ा असर पड़ता है। गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ापन होगा बीवी पे, कभी बच्चों पे, लोगों में, अपने यार दोस्तों में आके वो अपना चिड़चिड़ापन शो करेगा। मनफी सोचों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? मनफी सोचों से बाहर इसलिए निकल सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप जिक्र करते रहें, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें, दुरूद पाक पर दुरूद पाक पढ़ें या कोई भी अज़कार हो जो आपके दिमाग में है वो पढ़ते रहें। तो कम से कम ये होता है कि उन असरात से बचने के लिए कम से कम ये तो आप जो कर रहे हैं, एक तो तरीके से समझने के, एक तो उसका असर ये हुआ कि आपकी जो मनफी असरात हैं वो आपके इतना वो नहीं करेंगे, आप लाउड नहीं हो सकते, गुस्से में नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला आप करम करेगा, दिल नरम हो जाता है। दिल नरम हो जाता है इंसान का, तो आप सॉफ्ट हो जाते हैं लोगों के लिए। दुरूद पढ़ें, अज़कार करें, जो भी करें, लेकिन सदके नियत से करें। और मैं अपना बताता हूँ कि मैं अगर कहीं फालतू बैठा होता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं कुछ ना कुछ, अगर मेरे ज़बान नहीं हिल रही है, होंठ नहीं हिल रहे, तो मेरे माइंड चल रहा होता है किसी चीज़ की तरफ, अज़कार की तरफ चल रहा होता है। हमारी जो मनफी सोच होती है इसका हमारे जहन और सेहत पे भी कोई फर्क पड़ता है? नफसियाती उस पर चले जाते हैं। कई नौजवान लड़के जो हैं इसी के उससे करें नशे में चले गए, हम ऐसे क्यों नहीं है, जैसा ये है, इसके पास मोटरसाइकिल है मेरे पास नहीं है, इसके पास मोबाइल है मेरे पास नहीं है। वो मनफी असरात जो है ना वो उस लोगों को राग़िब करती है। आपने जो फारिग औकात होते थे, फुर्सत के लम्हात होते थे, उनको आप कैसे गुजारते थे? फारिग लम्हात बहुत कम मिलते हैं असल में, कराची में रह के तो बहुत ही कम है। सही। कराची में तो जो बंदा फारिग भी है ना वो भी फारिग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतनी जल्दी से गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता है, सुबह कब दोपहर शाम रात ये गए सो गए। कहीं तो जब यंग होंगे आप उस वक्त लम्हात तो फुर्सत के मिलते, बिल्कुल बिल्कुल मिलते तो उनको हैं। गुजारने का तरीका कार क्या होता था, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन से शेयर करें। असल में उनको रिलैक्स उसका होता था, रिलैक्स करते थे आराम से, सुकून से, वालिद साहब के साथ बात, वालदा के साथ बात ज़्यादा था, यही होता था। वालिद और वालदा के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता था फुर्सत में। तो दोस्तों में कंपनी वगैरह भी तो नहीं, होती होगी बहुत ना? कम, बहुत कम कंपनी। तो आपको पता है काम के सिलसिले में जो कारोबारी लोग हैं
वो दोस्ती कहाँ रख सकते हैं इतनी ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो नहीं रख सकते हैं। फी ज़माना लोगों को बस टाइम होता है, वो स्पेंड कैसे करते हैं, फारिग होते हैं वो स्पेंड कैसे करते हैं। खुशगपियाँ करके, बातें करके, किसी से भी बात कर ली, किसी से भी कोई भी मशगला छेड़ लिया। जब बुजुर्ग लोग बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं तो वो जब फारिग होते हैं, चुपाल होटलों में बैठना, लेट नाइट डिस्कस करते रहना, बातें करते रहना। अगर वो ये नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अगर कोई तो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ना उनके पास थोड़ी बहुत तो। अगर वो ये नहीं करते हैं तो बिल्कुल घर में बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे ये बताएं। घर में बैठे रहेंगे या फारिग औकात उनको मिलेंगे तो उसमें ऐसा वक्त अपना स्पेंड करें कि दुनिया में भी फायदा हो, आखिरत में भी। ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको वक्त तो गुजारना है, इस वक्त गुजारने का ना उनको दुनिया में फायदा है ना आखिरत में फायदा। बिल्कुल। अब ये कुछ बुजुर्ग तो ऐसे भी देखे हैं ना, जो अज़ान हुई और फिर मस्जिद में पहुंच गए, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर और मगरिब पढ़ के वापस आते हैं घर पे। सही। और फिर इशा के लिए जो जाते हैं फिर वो 10 बजे तक वापसी आते हैं। फिर बिल्कुल उनका ऐसे ही चलता है शेड्यूल। किसी बुजुर्ग ने ऐसे बनाया हुआ है, किसी ने जैसे दिल करे वैसे बनता है फिर वो। तो आप क्या समझते हैं कि हमें अपना वक्त हकीकत में स्पेंड कैसे करना चाहिए जो हमें फारिग वक्त मिले, जिससे दुनिया में भी फायदा हो और आखिरत में भी? मैं तो अपना स्पेंड करता हूँ, जब मुझे फारिग वक्त मिलता है तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ बस। अल्लाह अकबर। बस इससे ज़्यादा। और मैं जब अपना कहीं हॉस्पिटल में गया या कहीं पे भी जा रहा है, कहीं पे भी बाइक पे भी बैठे हुए हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ना है मैंने, तो लाजमी सी बात है। जिक्र उस्कार करते रहते हैं। करते रहता हूँ बिल्कुल, ये तो लाजमी है ना, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। बेशक बेशक। अच्छा, मदी चंद के नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप कि आप अपना फारिग वक्त जो है फजूल गुजारने के बजाय किस तरह गुजारें? अल्लाह की राह में लगाएं। बिल्कुल अल्लाह की राह में लगेंगे तो दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी बिल्कुल फ़ायदा है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो वक्त जो आप अच्छे लोगों में गुजारेंगे तो आपका वक्त कीमती बन जाएगा। आपको तजुर्बा भी तो मिलता है ना, आपको तजुर्बा भी तो मिलता है। दूसरों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा तजुर्बा मिलेगा, बुरों के साथ बैठेंगे तो बुरी सोबत मिलेगी। फजूलियत से खुद भी बचें और अपनी औलाद को भी बचाएं। औलाद को भी बिल्कुल बिल्कुल जी। इसका बेहतरीन तरीका कौन सा है? आप उनको सारी चीजें प्रोवाइड करें ना, घर में प्रोवाइड करें ना। यानी आप चाहते हैं कि उनको फजूलियत से बचाने के लिए एक्टिविटीज देते हैं। कोई एक्टिविटीज है बिजी रखेंगे तो वो इधर उधर की फजूलियात में नहीं पड़ेगी ना। अब आप उनको फारिग छोड़ेंगे तो फिर बात है ना, अब उनको इतना टाइम ही नहीं दें, क्योंकि बच्चे आते हैं स्कूल से आके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सिपारे के बाद ट्यूशन के बाद वो थके हुए इतना आएंगे, उसके बाद खत्म। अच्छा, बुजुर्ग स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, बुजुर्ग को क्या जरूरत है स्कूल जाने की? हाँ, तो अब तो उनको खुद फारिग वक्त वो तो खुद पढ़ाने की जरूरत है ना। वो बारह टेनी भी खेल रहे हैं, शतरंज भी खेल रहे हैं, लूडो भी खेल रहे हैं, ताश भी खेल रहे हैं, खुशगपियां भी मार रहे हैं, दोस्तों में वक्त गुजार रहे हैं, तो उनको अपनी फजूलियात से बचने के लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि भाई मस्जिद का रास्ता सबसे ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद का रास्ते से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों की तरतीब सेट करें अपनी। जब बंदा फारिग होता है तो तरह तरह की सोचें उसको घेर लेती हैं। इन सोचों का बंदे के जहन में और जिस्म पे क्या असरात मुरतब होते हैं? जहन पे तो बड़े बुरे असरात असर करते हैं, लेकिन ये कि इंसान को मसरूफ़ रखना चाहिए जी। अपने काम में और अल्लाह की राह में। सोच का इंसान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो पॉजिटिव सोच भी आती है, नेगेटिव भी आती है। नेगेटिव सोच के नुकसानात क्या हो सकते हैं? नेगेटिव सोच जो है आपको बेरारवी की तरफ ले जाएगी। अच्छा सोचोगे तो उसके लिए अच्छी कोशिश करोगे आप। अच्छा, नेगेटिव सोच में बंदे की तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आएगा, लोगों से उलझेंगे, झगड़े फसाद ऐसे मनाजर देखने में भी आते हैं। तो इसलिए कि बंदा जब फ्रेश होता है तो लोगों से अच्छे अखलाक से मोहब्बत से पेश आता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है, उसका जहन जो है फ्रेश होता है। जो सोच बंदे की बन जाती है नेगेटिव यानी मनफी सोच, उस सोच में बंदा बेरहमी का शिकार होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इन सोचों से निकलने के लिए बंदे को क्या करना चाहिए? इससे निकलने के लिए जो है पहले तो जो है अपने आप को जो सही करना पड़ेगा, इसलिए कि दीन की तरफ राग़िब होना पड़ेगा। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि आप सोचने पे मजबूर हो गए और उस सोच ने, उस लम्हे ने आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाई हो? जब भी बंदा अगर परेशान हो, जब अल्लाह पाक से लो लगाएगा, कोई भी हाजत हो अल्लाह पाक से मांगेगा और अल्लाह ताला की तरफ वो राग़िब होगा,
मतलब जो परेशानी है मुश्किलें हैं सारी वो हल हो जाएगी। अच्छा, फिर ज़हन भी आपका अल्लाह पाक की तरफ लगेगा, दुनिया से थोड़ा हट जाएगा, तो उससे बड़ी बेहतरी आती है ज़िंदगी में भी, और ज़हनी सुकून भी मिलता है। फुर्सत के लम्हात जब होते हैं मतलब फारिग होते हैं, और सोचिए उसको ना आए, ये हो नहीं सकता। हर बात में आप जब सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए या आप परेशान हो जाएंगे या आपको नुकसान हो जाएगा या आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, आप एंग्जाइटी का शिकार होंगे, ऐसे नहीं है। आप मदीने के सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। कुछ सोचें हैं जो आएंगी तो अपने साथ रिलेटेड चीज़ों को लेकर आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचते रहते हैं और उनका हल आपके पास नहीं होता और आप उनका हल कर भी नहीं सकते। तो आप गुलाम शबीर भाई जब वो काम करने जाएंगे जो आपकी कैपेसिटी नहीं है या जो आपकी एबिलिटी और सलाहियत नहीं है, यूं बोले कि इख्तियार में नहीं है, अब वो करने का जब सोचना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, परेशानी, एंग्जाइटी, ये क्या है, जमा होती चली जाएंगी। और जब आप ओवर थिंकिंग का शिकार होते रहेंगे, फजूल फालतू चीज़ों को जो है वो सोचते रहेंगे, तो फिर यूं बोलिए कि आपने परेशान ही होना है। चेहरा जो है उतरा हुआ है, किसी ने कोई बात की तो बारूद की ढेरी बना हुआ है, ज़रा सी चिंगारी लगी, क्या है, भब करके जो है ना वो बंदा हटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों से वही बंदा बचने में कामयाब हो सकता है जो दिल को अल्लाह और उसके रसूल की याद से लगा के रखता है। आपने जो है फुर्सत के लम्हों की बात की, हसन रज़ा खान फरमाते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो। दिल में हो याद तेरी, आका करीम की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कोई बंदा सोच सोच के क्या हो रहा है, हलकान हो रहा है, और कोई सोच रहा है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, रूहानियत को बढ़ाता चला जा रहा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी सोचों का धारा क्या रखा हुआ है। अच्छा, जैसे भी आपने इरशाद फरमाया कि जिस तरह की बंदा सोच रखेगा उसमें उलझता ही चला जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे पॉजिटिव सोच है तो वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे फ्रेश पुरसकून रहेगा, इत्मीनान में रहेगा। अगर वो नेगेटिव सोच है उसकी, ये क्या होगा, कैसे बनेगा, किस तरह होगा, तो वो आजमाइशों में आएगा। उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो इससे बढ़ के सोच सके। आप सोच सके, सोचने तो में तो पाबंदी नहीं है गुलाम शबीर भाई, सोचता तो जाएगा लेकिन उसका हल नहीं कर पाएगा ना, चीज का हल नहीं है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब आपको गाड़ी आपकी लेट हो गई है, आप जहाज में बैठे हुए हैं, जहाज खराब हो गया है, सर्च कर ले, आपने क्या करना है, आप कलमा शरीफ पढ़ लें भैया। जितनी देर आपने आगे पीछे सोच रहे हैं उतनी देर में अल्लाह को याद करें, कलमा शरीफ पढ़े, अल्लाह करीम आपके लिए क्या करेगा, राह निकालेगा, निकलने का रास्ता बनेगा। सोच तो आनी ही आनी है। अच्छी सोच आएगी तो अच्छी चीजों को साथ लेकर आएगी, और बुरी सोच आएगी तो वो बुरे असर को साथ लेकर के आएगी। हमें अपनी सोच के धारे को दुरुस्त करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि मनफी सोच के नुकसानात जो होते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दी कि इसमें मेजर नुकसानात क्या होते हैं। अगर उसकी पॉजिटिव सोच ना हुई, नेगेटिव सोच हुई, तो उसकी हमारी बॉडी पे क्या असरात हो, ज़हन पे हो। आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा गुलाम शबीर भाई, सोच सोच के क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन ले लेके क्या हो गया, शुगर हो गई, ज़हन लोग कहते हैं ज़हन क्या है, ज़हन काम नहीं कर रहा, ओवरलोड कर लिया ना। वक्त जो मौजूद है वो हाल है, गुजरा माजी आता इस्तिकबाल है। आप गुलाम शबीर भाई, आप लोग, हम लोग मदनी जिले के नाज़रीन हैं हमारे साथ, कभी सोचें अपने साथ, सोचना तो क्या है, गौर कर लें कि हमारी परेशानियां किस चीज़ में हैं। या तो हैं क्या होगा या क्या हुआ था क्या है, गुजर गया, होगा क्या है, पता ही नहीं है। वक्त जो मौजूद है वो हाल है, गुजरा माजी आता इस्तिकबाल है। तो बंदे को चाहिए कि लम्हा हाल में जीना सीखे, लम्हा हाल में जीना सीखे कि इस वक्त क्या है। अमीर सुन्नत की तरफ से कोई ऐसी सोच आपको मिली हो जिसने आपकी लाइफ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया और लाइफ ही चेंज कर दी हो। अमीर सुन्नत ने हमारी सोचों को और फिक्रों के धारे को दुरुस्त किया है। अमीर सुन्नत की सोहबत की बरकत से हमें अपनी आखिरत का फिक्र मिला है। दुनिया क्या कर रही है, फिक्र मुआश दे रही है। अमीर सुन्नत क्या कर रहे हैं, फिक्र मदीना दे रहे हैं, फिक्र आखिरत दे रहे हैं, याद मदीना, याद मक्का, ये सब मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और साथ में तरबियत भी मिल रही है, क्या करना है, किस तरह करना है, कितना करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से निज़ाम ठीक जा रहा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन को कोई प्यारा सा पैगाम अता फरमा दें कि इन सोचों से जान छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो हमें नेगेटिव सोच की तरफ लेके जाती हैं। अल्लाह की याद दिल में बसाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मदीने के ख़यालात
अपने तसव्वुरात में लेकर के आएँ, नेगेटिव और ओवर थिंकिंग से बचने में कामयाब होंगे और ज़िंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बागो बहार हो जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुस्बत सोच को डिस्कस किया आपके साथ और ये देखा कि इसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ता है। नेगेटिव थिंकिंग यानी मनफी सोच हमारे दिलो दिमाग और हमारे साथ वाबस्ता अफराद को कैसे मुतासर करती हैं। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अच्छा सोचिए, क्योंकि सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल और अमल से किरदार बनता है और किरदार ही इंसान की पहचान होती है। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, यही वो अमल हैं जिनकी वजह से दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दारोमदार होगा। अच्छी सोच और अच्छे अमल से सुथरे किरदार तक का सफ़र अब हमने तय करना है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए नियत करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में उन सोचों को जगह देंगे जो हमें रज़ाए इलाही अज़्ज़ा व जल के करीब ले जाएं। ऐ काश हम मनफी सोचों से बचते हुए मुआशरे में अमन व सुकून पैदा करने वाले बने। दौरे हाज़िर में मुआशरे में पॉजिटिव सोच डेवलप करने वाली, पॉजिटिव सोच देने वाली दीनी तहरीक दावत इस्लामी से हमेशा हमेशा के लिए वाबस्ता हो जाइए। अल्लाह ने चाहा तो ये सोच हमारी बन जाएगी और हम मुस्बत सोच रखते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाबी के सफ़र को तय करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब को अच्छी सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, कर लो इल्मे नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।